دیر کے لیے خاموش رہیں۔ ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے، تم اپنی ذات سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرنے لگ جاؤ، تب تک تمہارا ایمان وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں اپنی نیت کو مستحضر کرتا ہوں اور میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر آپ کے بعد اپنے آپ سے محبت۔ ہمیں بھی اپنی نیت کو مستحضر کرنا چاہیے۔ یہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اس دن کی آمد پر، اس مہینے کی آمد پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل و دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر لینی چاہیے اور اپنی نیت کو مستحضر کر لینا چاہیے، اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بسا لینا چاہیے، اور پھر اس محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کے مطابق اپنے طور طریقے بنا لینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھال لینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کے مطابق اپنے شب و روز بنا لینا، یہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ربیع الاول ہمارے لیے پیغام لے کر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی سنتیں ہیں۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو سنتیں انفرادی درجے کی سنتیں ہیں، کچھ سنتیں اجتماعی درجے کی سنتیں ہیں، کچھ سنتیں باہمی لوگوں کے حوالے سے کس طریقے کا رویہ رکھنا ہے، لوگوں سے کیسے حقوق رکھنے ہیں، باہمی تعلقات کے حوالے سے، باہمی ربط کے حوالے سے سنتیں ہیں۔ ہمیں ان سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور اس سیرت کے مطابق اپنی سیرتوں کو بنانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں جب بھی اذان کی آواز آیا کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں تشریف لاتے، ہمارے درمیان بیٹھتے، ہم سے گفت و شنید فرماتے اور ہم سے انتہائی محبت کے ساتھ بات چیت کیا کرتے، لیکن جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں اذان کی آواز آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر مسجد کا رخ کرتے، اس طرح کہ گویا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہوں کہ ہم کون ہیں۔ یہ بھی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کا، نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ فجر کی نماز، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے فجر کی نماز کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت اہتمام کیا اور کتنے لوگوں نے نہیں کیا۔ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے۔ عشق رسول کا تقاضا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں گر جائیں گے اور اپنی امت کے لیے گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے اور مغفرت کی دعائیں کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کو جہنم کی ہولناکیوں کے بجائے جنت الفردوس عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ روز محشر میں بھی ہمیں نہیں بھولیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے بھی ہمیں یاد رکھتے ہوئے سجدے کی حالت میں ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ ہم ان نبی کے امتی ہیں، ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سنت کو اپنائیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ جو کچھ تعلیمات احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، ہم بھی اسی طریقے کے رویوں کو اختیار کریں۔ روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی کام کیا کرتے تھے اپنے سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ اگر کنگھی کرنا ہوتی تو پہلے دائیں جانب کے بالوں کی طرف کنگھی پھیرا کرتے تھے، اگر مسواک کرتے تو پہلے دائیں طرف جو دانت ہیں ان پر مسواک کو پھیرا کرتے تھے، چپل پہنتے تو دائیں قدم میں
दाएं कदम को चप्पल में डाला करते थे, मस्जिद में दाखिल होते तो दायां कदम सबसे पहले मस्जिद में रखा करते थे। हम भी इस सुन्नत को अपनाएं। ये छोटी छोटी सुन्नतें, ये मामूली मामूली सुन्नतें, ये हमारी रूहानी तरबियत का जरिया बनेंगी, हमें फ़राइज़ की तरफ आमादगी और फ़राइज़ की तरफ ले जाने का जरिया बनेंगी। हम भी जिस काम का आगाज़ करें हम सीधी जानिब से करें, दाएं तरफ से करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए करें। रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम जब रात को सोया करते थे तो सोने से पहले कुछ दुआओं का और ज़िक्र अस्कार का एहतमाम किया करते थे। बिस्तर पर लेट जाया करते थे, अपने हाथों को बुलंद करते थे और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करके अपने हाथों पर फूंका करते थे और फिर पूरे जिस्म के ऊपर फेर लिया करते थे। जहाँ तक हाथ पहुँच पाता वहाँ तक आप अलैहिस्सलाम अपने हाथों को फेर लिया करते थे। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस सुन्नत को भी हम अपनाएं। दाएं करवट लेटते थे और अपने दाएं गाल के नीचे अपने दाएं हाथ को रख लिया करते थे। इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे और आपका जो बिस्तर मुबारक था वो टाट का और चमड़े का बिस्तर हुआ करता था। कोई आराम का बिस्तर न था, कोई मल्टी फॉर्म का गद्दा न था, बल्कि चमड़े का टाट का बिस्तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ करता था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आपका बिस्तर टाट का बिस्तर था और मैं 2 मरतबा उसे लपेट दिया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आराम फरमाया करते थे। एक मरतबा एक खातून घर में आई, उस खातून ने मुझसे कहा कि क्या ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है? मैंने कहा कि हाँ ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है। उस खातून ने मुझसे कहा कि मैं एक नरम बिस्तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफतन देना चाहती हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप घर में तशरीफ़ लाए तो मैंने उस खातून का पैगाम आपको पहुँचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, कहा कि आयशा अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सोने जवाहिरात के ढेर मेरे सामने लगा दे, अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये उहद पहाड़ को सोने के बराबर बना दे। लेकिन ये दुनिया, ये तो आर्जी दुनिया है, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, असल मंजिल तो जन्नत की मंजिल है, आखिरत की मंजिल है। मुझे उसकी फ़िक्र है, मैं उसकी खातिर इस बिस्तर को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हूँ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक मरतबा मैंने इरादा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु के बजाय 4 मरतबा तय कर दूँ और 4 मरतबा तय करके मैंने रख दिया। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने रात को आराम फरमाया, सुबह फजर की नमाज के लिए आप उठे तो मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आयशा आज तुमने कैसा बिस्तर बिछाया है। छोटे छोटे लुक़मे वो खाया करते थे, हम भी उसी तरीके को अपनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म के अंदर 7 आंतें होती हैं और मोमिन सिर्फ 3 आंतें भर कर खाना खाता है, 3 आंतों से ज़्यादा वो खाना नहीं खाता, तक़सीम कर दिया करते थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब्बिल अव्वल का महीना हमें इस बात की जानिब मुतवज्जा करता है कि हम उनकी सुन्नतों को अपनाएं, उनकी सीरत को अपनाएं। उनकी एक सुन्नत और एक सीरत ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम वो जिद्दोजहद का पैकर थे, वो अज़्म मुसम्मम का पैकर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिम्मेदारी आप पर आयद की थी, जो फरीज़ा आपके सुपुर्द किया था, जिस मिशन को पहुंचाने का काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया गया था, आपने उसमें एक जिद्दोजहद का पैकर बनकर जिद्दोजहद मुसलसल करते हुए लोगों की तरफ आप गए, अल्लाह का पैगाम लोगों की तरफ पहुंचाया। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि दावत का काम किया जाए, तबलीग का काम किया जाए, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। हम दावत का काम करते हैं, अपने बिस्तरों पर बैठ कर करते हैं, हाथों में मोबाइल होता है, सुबह आँख खुलती है, व्हाट्सएप पर किसी को कोई कुरानी आयत भेज देते हैं, फेसबुक पर कोई हदीस का टुकड़ा जारी कर देते हैं, पता नहीं होता कि हदीस सही भी है या नहीं है। हम समझते हैं कि हमने तबलीग का हक अदा कर दिया, कुरान और सुन्नत का हक अदा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताइफ की वादियों के अंदर मौजूद है, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक और शाम तक ताइफ के लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। कोई एक फर्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक एक घर पर, एक एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं, सबको अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ताइफ के सरदारान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे
गलियों के औबाश और आवारा लड़कों को लगा देते हैं। वो पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारते हैं, इतने पत्थर मारते हैं कि आपके कदम मुबारक, आपके नालेन मुबारक वो लहू में भर जाते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं। आप किसी मकाम पर ठहर जाते हैं, आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। ये दावत के मैदान में, ये तबलीग के मैदान में, ये लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए खून बहाना, अपना लहू बहाना, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस सुन्नत को भी आज हमने तर्क कर दिया है। जिन कई सुन्नतों को हमने तर्क कर रखा है उनमें से एक ये भी सुन्नत है। हज़रत जिब्रील तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह अगर आप कहें तो ये जो वादी ताइफ है इसको हम दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दे और कुचल कर रख दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देते हैं, कहते हैं कि जिब्रील हरगिज़ ऐसा ना करना, अगर ये लोग ईमान न लेकर आए तो इनकी बाद वाली नस्लें ईमान लेकर आएंगी। यानी एक उम्मीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी कि अगर ये ईमान न लेकर आए तो इनकी बाद वाली नस्लें ईमान लेकर आएंगी और फिर बाद के लोग ईमान भी लेकर आए। तो ताइफ की वादियों में जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की गलियों में, मक्का के बाजारों में लोगों के घरों तक पहुंचकर या सबाहा की बुलंद पुकार कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह दावत का काम किया, अपने आप को थकाया, अपने जिस्म को लहूलुहान किया, गर्दो गुबार के अंदर अटे। वो जो रिवायात में आता है, घर में तशरीफ लाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, बेटी हजरत फातिमा आगे बढ़ती हैं, दरवाज़ा खोलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ लाते हैं, बाल मुबारक गर्द से कटे हुए हैं, जिस्म मुबारक गर्दबार हुआ है। हजरत फातिमा फरमाती हैं कि अब्बा जान आप तशरीफ़ रखिए, मैं पानी लेकर आती हूँ, आपके बालों को धुलाऊंगी। हजरत फातिमा जाती हैं, पानी लेकर आती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए होते हैं। हजरत फातिमा अपने वालिद की इस कैफियत को देखती हैं तो आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो आंसू हजरत फातिमा के चेहरे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुंतकिल होते हैं, उठकर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि फातिमा ए मेरी बेटी क्यों रोती हो, क्या माजरा है? हजरत फातिमा फरमाती हैं कि अब्बा जान आपकी ये कैफियत मुझसे देखी नहीं जाती, आप कई कई दिन घर से दूर रहते हैं, आपका जिस्म तुरकन से चूर चूर हो जाता है, आप गर्दो गुबार में अट जाते हैं, मुझसे आपकी ये कैफियत देखी नहीं जाती, बेटी हूँ, रोना आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मिशन मेरे सुपुर्द किया है, जिस दावत और तबलीग का काम मुझे सौंपा है, जब तक आखिरी सांस बाकी है तब तक ये काम मैं करता रहूँगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल का अरसा तवील अरसा है, 13 साल का अरसा मक्का के अंदर रहते हैं, 2/3 कुरान मक्का के अंदर 13 साल के अरसे के अंदर नाजिल होता है। दावत और तबलीग का एक दौर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह छोटी छोटी सुन्नतें हैं, इस तरह बड़ी सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि हम दावत और तबलीग के काम के अंदर अपना खून बहाएं। जिस तरह वादी ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खून बहाया, इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत मुबारका ये भी है। और रबीउल अव्वल का महीना जब भी आता है हमें आपकी सुन्नतों की तरफ तवज्जो दिलाता है, तो हम आपकी सुन्नतों पर अमल पैरा होने के लिए इस सुन्नत के ऊपर भी अमल पैरा हो कि बातिल निज़ाम के मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद्दोजहद की, बातिल बादशाहों के सामने, कुफ्फार के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद्दोजहद की। बदर के मैदान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, हाथ में तलवार थामे दुश्मनों का मुकाबला किया, 14 सहाबा की जानों के नजराने पेश किए। ओहद के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दंदान मुबारक को शहीद करवाया, आपके दंदान मुबारक से खून निकला, वो खून, वो लहू के जो कायनात का अजीम तरीन खून है, कायनात का अजीम तरीन लहू है, मैदान ओहद के अंदर वो खून बहाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो शहादत के मनसब पर सरफराज हुए। ये सारा का सारा माजरा, ये सारी की सारी कैफियत, ये दावत और तबलीग का काम, ये मैदान जिहाद के अंदर खून बहाने का काम, दुश्मनों के मुकाबला करने का काम, ये दरअसल इसलिए था कि ये जो बड़ा मिशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द किया गया कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि दीन को गालिब करना है, दीन को कायम करना है, खित्ते के ऊपर अल्लाह के निज़ाम की हुक्मरानी होनी चाहिए, अल्लाह ही की हुक्मरानी होनी चाहिए, अल्लाह ही का निज़ाम गालिब होना चाहिए। ये पूरी सीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सारी की सारी सीरत और सारे के सारे सीरत के वाक़यात का खुलासा हमें यही मिलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिद्दोजहद, आप
अलैहिस्सलाम का खून बहाना, आप अलैहिस्सलाम का लोगों तक पहुंचना, आपका दावत को आम करना, कुरान करीम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, ये सब इसलिए था कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन गालिब हो जाए। तो बातिल और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। आज हम समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, सुन्नत नबवी पर अमल कर लिया, हमने रोज़ा रख लिया, सुन्नत नबवी पर अमल कर लिया, अगर इस्तिताब है तो ज़कात दे दी और हज की अदायगी का एहतमाम कर लिया, तो सुन्नत नबवी पर अमल कर लिया। इन्हीं चंद इबादात को हम अमल करते हुए ये समझते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, और हमसे बड़ा कोई आशिक़ रसूल नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनाना है। इनफिरादी सुन्नतों को भी इख्तियार करना है, इज्तिमाई सुन्नतों को भी इख्तियार करना है, दीन की दावत और तबलीग का काम भी करना है, दीन को कायम करने की जिद्दोजहद का भी काम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सारी की सारी मोहब्बतों के ऊपर अव्वलीन तरजीह देनी है, और आप अलैहिस्सलाम को सबसे बढ़कर अजीम कर जानना है। ये जो रबीउल अव्वल के महीने में ये बहस की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए, 9 को तशरीफ़ लाए, 8 को तशरीफ़ लाए, आप किसी दिन तशरीफ़ लाए, किसी भी तारीख़ में तशरीफ़ लाए, हम इस पर ईमान रखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए नबी के तौर पर आए और आखिरी नबी के तौर पर आए, और कुरान करीम और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म लेकर आए और हिदायत का ज़रिया हमारे लिए बने। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ मतमय नज़र नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई। इस पर हमारे ईमान का कोई मायार, कोई तकाजा नहीं है, इससे हमारे ईमान पर कोई असर या कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का कोई दिन मुतय्यन करें या ना करें। असल मकसूद ये है कि हम आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बिठाएं। वो जो अरब का माशरा था, किस कदर बुरा माशरा था, किस कदर बुरा और बदतहजीब माशरा था। हर बुराई जो आज हमारे माशरे के अंदर मौजूद है, अरब के माशरे के अंदर भी मौजूद थी। जिना उस माशरे के अंदर आम था, शराब नोशी उस माशरे के अंदर आम थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बच्चियों को पसंद नहीं किया जाता था। उस माशरे के अंदर झूठ भी आम था, सूद भी आम था, रिश्वतखोरी भी आम थी, हर बुराई उस माशरे के अंदर आम थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने अकेले और तन्हा उस पूरे के पूरे माशरे को बदल कर रख दिया। शराब के हवाले से हुर्मत आई तो मदीना की गलियों के अंदर शराब की शराबें वो उतरती चली गई और पानी की तरफ बहती चली गई। सूद की हुर्मत आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरों तले सारे के सारे सूद को कुचल कर रख दिया। वो सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल पैरा होते रहे। हम भी वही रवैया इख्तियार करें, उन्हीं सुन्नतों को ताज़ा करें। एक दूसरे के हुकूक के हवाले से, माशरे के अंदर माशरती हुकूक के हवाले से, पड़ोसियों से कैसे हुकूक रखने हैं, वालिदैन से कैसे गुफ्तगू करनी है, भाइयों बहनों से किस तरीके से बात करनी है, एक दूसरे से कैसा रवैया इख्तियार करना है। अगर हम कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, सफ़र की हालत में हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे किस तरीके का रवैया रखना है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनाएं। यही रबीउल अव्वल का पैगाम है, यही रबीउल अव्वल का तकाजा है। वो जो रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे सफ़र के ऊपर चढ़ जाते हैं, या सबाहा कहते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो मुशरिकीन मक्का आपके करीब आते हैं, पूछते हैं कि मोहम्मद तुमने हमें क्यों बुलाया है। आप फरमाते हैं कि अगर मैं तुमसे ये बात कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, ताकतवर लश्कर है, तुम पर हमला आवर होने वाला है, क्या तुम मेरी बात को कबूल कर लोगे। वो सारे बात कहते हैं कि हाँ, हम आपकी बात को तस्लीम कर लेंगे। हमने आपको हमेशा सादिक पाया है, खरा और सच्चा पाया है, कभी आपको झूठा नहीं पाया। हम आपकी हर बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगले ही लम्हे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर दो, उसकी तौहीद का इकरार कर दो, तो वो लोग कि जो कुछ लम्हे पहले आपको सादिक और अमीन कह रहे थे, वह आपसे पीछे हट गए और कहने लगे कि मोहम्मद तुमने हमें किस किस्म की बातों के लिए जमा किया है, तुमने हमारा वक्त ज़ाया कर दिया, तुमने हमारा वक्त बर्बाद कर दिया, इस किस्म की फजूल बात के लिए तुमने हमें जमा कर रखा है। हमारा भी
वही मुशरिकीन मक्का वाला, वही मुशरिकीन अरब वाला रवैया है। हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पढ़ते हैं, अपने घरों के अंदर शादी ब्याह की तकरीबात करते हैं। अगर कोई कहे कि भाई सुन्नत का तकाजा ये नहीं है, सुन्नत तो ये है, हम कहते हैं कि अगर हम सुन्नत पर अमल करेंगे माशरा क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। हम कोई काम करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अगर बताई जाए तो लोग कहते हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे हवाले से बातें बनाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन मुशरिकीन मक्का ने यह कहकर रद्द कर दिया था कि तुमने किस किस्म की बात कहने के लिए हमें इकट्ठा किया है, तुम हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हो। आज हम भी यही समझते हैं कि इन सुन्नतों पर अमल करने के नतीजे में हमारा वक्त बर्बाद हो जाएगा, हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, हमें माशरा बुरा भला कहेगा। माशरा बुरा भला कहता रहे, हमें इससे कोई ग़र्ज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक वही है कि जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाए, आपकी तालीमात को अपनाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक अपनी सीरत को भी ढालने की कोशिश करे। मैं इन अल्फाज पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर अव्वलीन तरजीह के तौर पर साबित फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।